अच्छा, so we had done three methods of preparation. ठीक है, just a quick recap. Okay, there were three methods of preparation, and the reason it's important is, I mean, this is very important, is you get big questions on this. So method of preparation were that you had excess method, titration, and ionic precipitation. Each one was used in a different situation. Different situation क्या कि uh, if the salt is soluble, so it's either going to be excess method or titration. If you're making it from an insoluble reactant, the excess method है. If you're making it from a soluble reactant, then you're going to use titration. और फिर ionic precipitation हमने लास्ट किया था, वो completely different तरीके से बनती है salt. और फिर हमने सारे methods को पढ़ा था. So what I'm just going to do is, okay, we're going to practice another question. ठीक है, इन्हीं methods को ना हम practice कर लेते हैं कि, and remember, everything is linked with solubility of the salts. ठीक है, that's very important. So let's say you're being asked to prepare karo pure dry crystals. I said prepare pure dry crystals of the following. अच्छा, तीनों methods को ना हम discuss कर लेते हैं. ठीक है, so let's say in number one is you have to prepare pure dry crystals of let's say uh, MgCl2. As a number two is you have to prepare pure dry crystals of FeCO3. ठीक है, और number three is you have to prepare pure dry crystals of, let's say, uh, किसके करें? Let's say you have you're trying to prepare pure dry crystals of K3PO4, K2SO4 कर लेते हैं. अच्छा, you have to prepare these three salts. Now each one based on the solubility would be prepared in using a different method. Starting with MgCl2, पहला काम क्या करना है कि अच्छा, number one कि MgCl2 प्रिपेयर करना है. अब पहले तो ये देखना है कि is it a soluble salt or is it an insoluble salt. तो Cl-1 वाले के बारे में यहाँ पे there was a solubility table written, ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था. तो इसको देख लो कि it says कि Cl-1 वाली जो चीजें ना, they are mostly soluble, सिवाय इन दो के. They're mostly soluble. तो MgCl2 is soluble. तो इसका मतलब है वो तीसरा मेथड तो नहीं होगा, ionic precipitation नहीं होगा. It's either going to be excess method or titration. So it's a soluble salt. अब कितने तरीकों से MgCl2 प्रोड्यूस हो सकता है? But you would have to do a reaction. कि MgCl2, it's soluble, aqueous है, ठीक है, it's a soluble salt. You have to think of a reaction in which MgCl2 is produced. तो तीन reactions है. One is a metal plus an acid. Acid कौन सा होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा? Fluorine. ठीक है, so it's going to be HCl, hydrochloric acid, plus metal कौन सा हो सकता है? Mg हो सकता है. अब मुझे तो क्या मैं Mg metal यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता है. ठीक है, मैजिट मेटल्स के ऊपर एक लिमिटेशन थी कि वो बस मैजिट वाले यूज कर सकते हैं. अच्छा, मेटल प्लस एसिड H2 गैस बनेगी. ठीक है, दैट्स वन ऑप्शन. द अदर ऑप्शन इज कि आप MgCl2 बनाना है. तीन डिफरेंट रिएक्शंस कर सकते हो. द अदर ऑप्शन इज कि MgCl2 बनाना है, सो यू कुड यूज बेस प्लस एसिड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, तो वही होगा HCl, प्लस there's going to be H2O that would be produced. ठीक है, वाटर प्रोड्यूस होगा. और तीसरा तरीका है कि if you want to make MgCl2, so the third method is कि carbonate plus acid. If you use a carbonate, which in this case would be magnesium carbonate, plus उसके अंदर ना HCl डाल दो, तो there's going to be water
एंड देयर इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये तीनों तरीकों से ना, तीनों रिएक्शन से सॉल्ट, और चौथा जो रिएक्शन था वो अमोनिया प्लस एसिड होता था, वो अमोनियम सॉल्ट्स के लिए, इसके लिए नहीं है। अच्छा, तो तीनों मेथड से ना सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाती है। लेट्स से आई डिसाइड टू चूज द थर्ड वन, राइट, कि मैं तीसरा रिएक्शन ये कार्बोनेट प्लस एसिड करके ना मैं सॉल्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेथड कौन सा यूज करूंगा? मेथड डिपेंड्स ऑन द सॉलिबिलिटी के। HCl इज एक्वस एसिड है। कार्बोनेट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? कार्बोनेट्स जो होते हैं वो ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन हियर कि कार्बोनेट्स का पढ़ो कि कार्बोनेट्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल। ग्रुप 1 और NH4+1 के अलावा मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल। कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये MgCO3 इसका ग्रुप 1 से कोई ताल्लुक नहीं है, सो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स आल्सो इनसॉल्युबल। तो ये सॉलिड है। खैर H2O जो है वो लिक्विड है, एंड CO2 इज अ गैस। So you're making a soluble salt from an insoluble reactant. I said, so if you're making a soluble salt from an insoluble reactant, then this is going to be known as the excess method. ये सारों को क्लियर है? इमानुला क्लियर है? फराज, मुर्तजा क्लियर है? Yes, sir. Yes. सर हाँ, सर हम बाकी भी यूज कर सकते हैं ना मेथड्स, मतलब है ना उसमें? नहीं वो बाकी मेथड नहीं है, रिएक्शंस है। हम तीनों में से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हैं, हाँ जी, सॉरी, रिएक्शन, ठीक है। ठीक है सर। ओके। लेकिन फिर वो रिएक्शन पे देखना पड़ेगा कि रिएक्शन की जो स्टेट्स होंगी ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेथड कौन सा यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में तो कोई भी यूज करते हैं ना तो एक्सेस मेथड ही होता है, क्योंकि Mg भी इनसॉल्युबल है, मेटल है। MgO भी इनसॉल्युबल है, क्योंकि सिर्फ ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो सारी सॉलिड्स हैं, तो इसलिए ना तीनों में से कोई भी यूज करते हैं ना तो एक्सेस मेथड होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेस मेथड में क्या होता है? हमेशा सॉलिड वाले को एक्सेस में डालते हैं। अब HCl MgCO3 इतना डालोगे कि सोल्यूशन के अंदर ना HCl सारा का सारा खत्म हो जाए, ठीक है। यू वांट द HCl गॉन। और सोल्यूशन के अंदर ना फिर सिर्फ एक चीज रह जाएगी, दैट वुड बी द सॉल्ट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड। और वो जो MgCO3 एक्स्ट्रा डाला होगा ना उसको आप फिल्टर आउट कर लोगे, दैट्स इट। तो दैट इज द एक्सेस मेथड के। और उसकी डिस्क्रिप्शन अपने वर्ड्स ना ही यूज करना तो बेहतर है। एड एक्सेस MgCO3 सॉलिड टू HCl aqueous। अच्छा, ये पता कैसा लगेगा कि HCl खत्म हो गया और MgCO3 एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया? वो क्या इंडिकेशन होगी? एनीवन? ये हमने जी जब हाँ, एच मतलब कब सर क्या? पीएच का। नहीं, पीएच का इसमें नहीं होता था। इसमें होता था कि MgCO3 अगर ज्यादा डाल दोगे ना तो HCl सारा खत्म हो जाएगा ना, रिएक्ट कर जाएगा, तो हाँ जी, बबल्स। बबल्स बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि HCl तो खत्म हो गया। क्योंकि हमारा एम है सोल्यूशन में HCl खत्म करना है ना, ताकि सोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक चीज हो जो MgCl2 हो, सारा का सारा HCl कन्वर्ट हो जाए MgCl2 में। तो add excess MgCO3 or keep adding until no more effervescence is seen. सर वो एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि या फिर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे। HCl में, मतलब कौन सा? HCl में। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी ना, यही एक गैस है ना। और तो ओके। कोई गैस ही नहीं है ना, वाटर जो है वो तो लिक्विड है। अच्छा, कीप एडिंग MgCO3 until, या तो आप लिख सकते हो कि इट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, कि आपने डाला है MgCO3 एक्स्ट्रा, HCl है नहीं तो वो MgCO3 नीचे बॉटम के ऊपर ना वैसे ही पड़ा हुआ है, तो रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड और नो मोर एफर्वेसेंस इज सीन। पे जो एक्स्ट्रा MgCO3 है इसको आपने रिमूव कर देना है, फिल्टर आउट एक्सेस MgCO3।
तो एक्स्ट्रा MgCO3 उसको फिल्टर आउट कर देना है। तो MgCO3 भी चला गया, ठीक है, दैट इज गॉन एज वेल, क्योंकि आपने उसे फिल्टर आउट कर दिया। और फिर अब पीछे सोल्यूशन में ना देयर इज ओनली CO2, तो वैसी गैस है, वो वैसी निकल गई सोल्यूशन में से। पीछे आपके पास बस MgCl2 और पानी रह गया, उसको क्रिस्टलाइज करना है। तो लास्ट स्टेप इज यू हैव टू डिस्क्राइब क्रिस्टलाइजेशन इन डिटेल, कि evaporate the filtrate to saturation point. अच्छा, evaporate the filtrate to saturation point and cool gradually. To obtain crystals or dry crystals between filter papers. अगर वो anhydrous आ रहा है बिल्कुल ही पानी के बगैर, तो फिर oven सनलाइट के अंदर कर लेते हैं। अच्छा, ड्राई क्रिस्टल्स इन सनलाइट, तो ये पूरा एक्सेस मेथड हमने लिख दिया, जो कि हमने पहले भी किया था कहीं पे। ये वाला था ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली। यही कि mg का पीस डाला है, अच्छा हमने वही कर दिया दोबारा। mg का पीस डाला था, HCl के साथ रिएक्ट किया था, MgCl2 बन गया था। HCl को खत्म करना था तो mg एक्स्ट्रा डाला था, फिर वो एक्स्ट्रा mg आपने रिमूव कर लिया था। अच्छा खैर, हमने मेथड चेंज कर लिया, हमने कार्बोनेट यूज किया हुआ है, मतलब रिएक्शन हमने चेंज कर लिया। अच्छा, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मुर्जा क्लियर है? जीनिया, फराज, माज? जी सर। सर यस। सर ये जो until it remains explain कर अनडिजॉल्व्ड ना, मतलब देखो तुम ज्यादा डाल रहे हो ना MgCO3, तुमने बीकर उठाया है, उसके अंदर HCl पड़ा हुआ है ना, HCl को खत्म करना है ना, सारे HCl को बेसिकली कन्वर्ट कर देना है किसमें? MgCl2 में, कि मतलब सारा HCl जो है ना वो रिएक्ट कर जाए ना। तो MgCO3 ज्यादा डालोगे ना, तो ज्यादा जब डालोगे तो बच जाएगा एंड में, तो थोड़ा सा MgCO3 का पीस नीचे पड़ा होगा, क्योंकि HCl तो है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। क्लियर? नहीं सर, सही समझ नहीं आई। देखो MgCO3 है ना, जब तुम जी इसको ज्यादा डालोगे, एक्सेस में डालोगे, बहुत ज्यादा डालोगे, तो HCl सारा रिएक्ट कर जाएगा ना, खत्म हो जाएगा HCl। तो मुझे बताओ कि वो जो हाँ, एक्स्ट्रा MgCO3 होगा वो क्या होगा? वो बीच में वैसे ही पड़ा होगा बॉटम पे, अच्छा ठीक है सर। तो वो Get रिमेन, it. मतलब जब तक HCl होगा तो MgCO3 भी रिएक्ट करता रहेगा ना उसके साथ, तो MgCO3 भी इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। जब आप जरूरत से ज्यादा MgCO3 डाल दोगे ना, तो वो फिर बस नीचे पड़ा होगा, कोई चीज ही नहीं होगी जिसके साथ वो रिएक्ट करे। क्लियर है? ओके, लेकिन सर मतलब सारा MgCl2 में नहीं कन्वर्ट हो रहा, कुछ कुछ MgCO3 भी होगा इन पे, क्योंकि एक्सेस हाँ है। सही। हाँ, HCl सारा का सारा खत्म हो रहा है, वो सारा रिएक्ट कर रहा है, अच्छा उसके साथ MgCO3 भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन MgCO3 हम ज्यादा डाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा डाल रहे हैं, ओके। तो वो एंड में फिर थोड़ा सा बच जाएगा, जो बचा होगा वो तो वैसे ही नीचे पड़ा होगा, उसी को तो फिल्टर तो आउट मतलब वो करना अच्छा फिल्टर आउट करना है, ठीक है सर। है, क्योंकि HCl तो खत्म हो गया ना, तो वो तो वैसे ही आपने फालतू में एक्स्ट्रा डाला हुआ है ना। जी सर, ठीक है सर। और वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल चीज को तो वैसे ही, या तो वो अगर सॉलिड है तो वो उसे पकड़ के बाहर निकाल लो, या फिल्टर आउट कर लो। अच्छा, अगला ओके। वाला, अगली जो सॉल्ट प्रिपेयर करनी है, दैट इज, वो क्या है, FeCO, सेकंड पार्ट इज FeCO3। तो नंबर 2 इज, लेट्स ट्राई एंड प्रिपेयर FeCO3 which is a solid। अच्छा, सॉलिड मैंने पहले ही कह दिया, पहले चेक कर लो कि सॉलिड है कि नहीं है, किधर है हमारा सॉलिबिलिटी टेबल। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? नंबर 2 पढ़ो कि कार्बोनेट्स, आई मीन दिस वन ओवर हियर, कार्बोनेट्स मोस्टली इनसॉल्युबल है। ग्रुप 1 के और NH4+1 सॉल्युबल है, एक्सेप्शंस है।
लेकिन अदरवाइज दे आर इनसॉल्युबल। तो Fe ग्रुप 1 का नहीं है, तो it's insoluble. तो insoluble salts, how do you prepare? So FeCO3 is insoluble. It is a solid. So how do you prepare an insoluble salt? उसका हमने लास्ट टाइम जो मेथड पढ़ा था वो ये था कि आप इसमें आयोनिक प्रेसिपिटेशन यूज करते हो। Whenever you want to prepare, अच्छा, आयोनिक प्रेसिपिटेशन इज यूज्ड, ये हमने ऊपर कहाँ पे लिखा है? ये हमने कहाँ किया था? अच्छा, ये तो इक्वेशन सॉल्ट प्रिपरेशन। जो थर्ड है, नंबर 3 कि इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, रिमेंबर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, इसको अंडरलाइन भी कर लें। पहले दो मेथड सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, द थर्ड वन इज फॉर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। उसके लिए आप हमेशा आयनिक प्रेसिपिटेशन यूज करते हो, और मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूं कि आयनिक प्रेसिपिटेशन में आप करते क्या थे। अच्छा, आयनिक प्रेसिपिटेशन में आप क्या करते थे कि आप पहले तो सॉल्ट प्रिपेयर करनी है, विच इज, अच्छा, विच इज FeCO3 solid. This, अच्छा, this is the salt that needs to be prepared. आवाज आ रही है सारों को? जी सर। जी सर। Yes. अच्छा, this is the salt that needs to be prepared. तो आप क्या करते थे? आप ये करते थे कि you think of two reactants. इसमें कोई इक्वेशन वगैरह आप यूज नहीं करते थे। आप क्या करते थे? You would think of two reactants. एक रिएक्टेंट के अंदर ना Fe2+ होना चाहिए, and the other reactant should contain carbonate 2-. शर्त ये है कि both of them should be soluble. तो Fe का कोई कंपाउंड बताओ जो सॉल्युबल हो। अब बहुत सारे Fe के कंपाउंड जो है ना वो सॉल्युबल हो सकते हैं। FeCl2 जो है, मतलब अगर क्रिस क्रॉस करो FeCl2 बनता है, दैट इज सॉल्युबल। मेरे ख्याल से Fe2+, कोई और नेगेटिव आयन बताओ, NO3-1, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं, तो वो भी सॉल्युबल है। कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स तो वैसे ही इनसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल है। तो Fe के ये दो कंपाउंड्स हैं जो सॉल्युबल हैं। फिर कार्बोनेट बताओ, कोई कार्बोनेट हो तो H2। ठीक है, तो वो H+1 हो सकता है, H2CO3 बन जाएगा, या फिर Na ग्रुप 1 का है, तो उसको जोड़ दो उसके साथ, तो इट्स गोइंग टू बी Na2CO3, या कुछ भी K+1 जोड़ दो तो K। सर हाँ, सर ये जो आप निकाल रहे हैं ना Cl, ये चीजें, ये आप पीरियोडिक टेबल से निकाल रहे हैं या फिर वो एसिड बेस के टेबल से निकाल? कौन सी चीज है ये? ये जी यही H+Na+, तो ये तो हम कोई भी लगा सकते हैं फिर। हाँ, मतलब देखो, नेगेटिव आयन होगा ना तो उसके साथ कोई पॉजिटिव आयन होगा ना। अच्छा, अब वो फिर पॉजिटिव उधर भी हाँ, अब उसमें पॉजिटिव आयन है ना, तो उसके साथ कोई नेगेटिव आयन होना चाहिए। ठीक है, सही। मतलब मैंने तो कहा है कि आपके पास ना अगर FeCO3 इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करनी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने एक कंपाउंड सोचना है Fe का, जिसमें FeR हो, जो मर्जी कंपाउंड है, वी डोंट केयर। अब Fe2+ है ना, तो उसके साथ कोई भी नेगेटिव आयन, अब नेगेटिव आयन ग्रुप 6, 7, 5, 6, 7 में होते हैं, लेकिन फिर हमने ये ढेर सारे नेगेटिव आयंस पढ़े थे ना, ये नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स, और दूसरी साइड पे ना कार्बोनेट आयन होना चाहिए, मतलब कंपाउंड के अंदर कार्बोनेट आयन होना चाहिए। तो अब कार्बोनेट नेगेटिव आयन है तो उसके साथ कोई पॉजिटिव आयन होगा ना। अब वो पॉजिटिव आयन ग्रुप 1, 2, 3 का हो सकता है, या फिर कोई भी जैसा अमोनियम आयन का पता है आपको कि अमोनियम आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, तो आप अमोनियम जोड़ दो उसके साथ। ठीक है, मास क्लियर है? जी सर। अच्छा, शर्त ये कि दीज हैव टू बी सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब है कि पानी के अंदर जब जाएंगे ना, दे वुड डिसोसिएट, तो they have to be soluble. So you have to think of two reactants, one containing Fe and the other one containing, तो मैं कोई भी कर लेता हूँ, इनमें से कोई पिक कर लेता हूँ, FeNO3
ये पिक कर लेते हैं और K2CO3 कर लेते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ओवर हियर एट द बॉटम कि देयर इज FeNO3 twice प्लस K2CO3 होगा। ये दोनों एक्वस हैं। अब इनका रिएक्शन क्या होगा जब इन दोनों को आप आपस में मिक्स करोगे? तो रिएक्शन मैंने समझाया था, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज के टेक अ बीकर, सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस को इसमें डाल दो, FeNO3 twice, तो इसका मतलब है द सॉल्यूशन वुड कंटेन Fe2 प्लस, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे बिकॉज इट्स वेरी सॉल्युबल। और K2CO3 उसमें कौन से आयंस है? देयर इज K+1 एंड देयर इज CO3-2, राइट? तो सारे K आयंस और CO3 आयंस दे वुड ऑल डिसोसिएट, और डिसोसिएट होने के बाद दे वुड रैंडमली कंबाइन विद ईच अदर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि Fe और CO3 के जो आयंस है ना, अगर वो कंबाइन कर जाते हैं सोल्यूशन में, क्योंकि दे रैंडमली मूविंग अराउंड, तो वो एकदम से सोल्यूशन में से ना दे वुड गेट रिमूव्ड, दे वुड फॉर्म अ क्रिस्टल, वो सारे आपस में जुड़ के they would form a crystal of Fe and CO3 which is going to be a solid, which is going to be insoluble. और सोल्यूशन में क्या रह जाएगा? K और NO3 आयंस। K और NO3 आयंस एक तो कंबाइन हो भी जाए, दे वेरी सॉल्युबल। ग्रुप 1 की चीजें जो होती हैं, दे वेरी सॉल्युबल, तो उन्होंने सोल्यूशन के अंदर ही रहना है। So you get two products. One is the solid FeCO3 that is produced, and the other one is that remains in the solution is KNO3 aqueous. और इस तरह आपको ना आपकी सॉल्ट मिल जाएगी। ये क्लियर है? अहमद क्लियर है? फराज? हाँ सर, इसमें भी वो आयरन नाइट्रेट जो है वो नीचे होगा ना, आपने कहा था उसको फिल्ट्रेट करेंगे। एक्वस है, एक्वस का मतलब है वो तो था ही सोल्यूशन का पार्ट ना, अच्छा, ये सॉल्युबल है, ओके मतलब अब वो रिएक्टेंट सॉल्युबल है ना, ठीक। मतलब अ, जब भी आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस कर दिया ना, तो आपने ये करना है, आपने उसके दो जो आयंस है ना वो देखने, एक कंपाउंड के अंदर एक आयन होना चाहिए, दूसरे कंपाउंड के अंदर दूसरा आयन होना चाहिए। और ऑब्वियसली वो आयन अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आयन नेक्स्ट टू अ नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन सोच लो जो मर्जी लगा दो, शर्त ये है कि इट मस्ट बी सॉल्युबल। और कार्बोनेट आयन अकेला तो नहीं होगा, उसके साथ कोई पॉजिटिव आयन होगा, तो शर्त ये है कि उसको सॉल्युबल होना चाहिए। जब वो सर सॉल्युबल मतलब वो आपने, जी सर, जब वो सॉल्युबल होंगे तो Fe और NO3 आयंस अलग अलग हो जाएंगे, K और CO3 आयन सारे अलग अलग पानी के अंदर, दे वुड ऑल डिसॉल्व, स्कैटर हो जाएंगे पानी के अंदर। बट अगर Fe और CO3 कंबाइन कर जाते हैं ना, तो वो फिर सॉलिड बन के, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, तो वो सॉलिड बन के ना नीचे बैठ जाएंगे और सोल्यूशन में ये दो आयंस खत्म हो जाएंगे। अहमद समझ आई ये बात? जी सर। सर मैंने सेकंडली पूछना था कि आपने यहाँ पे पोटेशियम लिया, या मतलब अगर हम सोडियम में हाइड्रोजन या अमोनिया लेते, अमोनियम, तो आपने वो क्यों नहीं लिया? या हम वो भी ले सकते हैं? तो वो ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि ठीक है सर, मतलब कोई स्पेशल वजह तो नहीं है ना ये लेने की? नहीं नहीं, ये ले लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम +1 है और कार्बोनेट 2- होता है, तो NH4 ट्वाइस होगा, ठीक है। अच्छा, ये ले लिया, ये भी सॉल्युबल है, मतलब इसमें भी कार्बोनेट है। तो सोल्यूशन में क्या होगा अब के सोल्यूशन के अंदर यू वुड हैव, अच्छा सोल्यूशन के अंदर यू वुड हैव एक तो FeNO3 ट्वाइस है, यानी Fe2 + NO3-1, द अदर वन इज K तो है नहीं, अब अमोनियम आयंस है एंड कार्बोनेट आयंस, राइट? तो ये रैंडमली कंबाइन करेंगे, ये दोनों अगर कंबाइन कर जाएंगे ना सोल्यूशन में, तो वो इनसॉल्युबल FeCO3 बना देंगे। FeCO3 इनसॉल्युबल है, तो ओके। FeCO3 का ना सॉलिड बन जाएगा नीचे, क्योंकि इन्होंने आपस में ये एक दूसरे को पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो Fe2 प्लस और CO3 आपस में जोड़ के दे वुड फॉर्म अ क्रिस्टल।
NH4+1 और NO3-1 वाली जो चीजें ना वो सॉल्युबल ही होती हैं। तो आपके पास जो इसके साथ बाय प्रोडक्ट बनेगा ना, दैट्स गोइंग टू बी NH4NO3। ठीक है, दैट वुड बी द अदर बाय प्रोडक्ट दैट इज गोइंग सर टू। सर वो जब ये सॉल्ट बन जाएगी और जब कुछ बच जाएगा ना वो पानी के अंदर, तो वो कंबाइन होके खुद ब खुद ही आखिर में लिखना है या फिर क्या? लिक्विड और गैस? जैसे अभी आपने कहा है ना कि Fe और CO3 कंबाइन हो चुके हैं, तो या हाँ ये दो बच गए, तो ये का खुद ब खुद ही कंबाइन हो और हाँ, आखिर आखिर में लिखना है। ऐसे नहीं हो सकता कि H2O प्लस CO2 बन जाए? नहीं, H2O कहाँ से आएगा और CO2 कहाँ से आएगा? देखो जी हाँ, रिएक्शन, समझ आ गई वो, मतलब मतलब देखो रिएक्शन तो होता था कार्बोनेट्स का एसिड के साथ ना, इधर तो एसिड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो वाले रिएक्शन तो होने नहीं है। ठीक है, इसका वो पिछले रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फाइनल जो चीज आप करोगे वो ये होगी कि इस सॉल्ट को बाहर निकाल लो, ये जो बनी है ये अपने प्रोड्यूस करनी थी ना। तो आपने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन कि जी मिक्स करो ये दो रिएक्टेंट्स। मिक्स किसको करना है? FeNO3 ट्वाइस aqueous प्लस NH4 ट्वाइस CO3 aqueous। उनको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद प्रेसिपिटेट बनेगा, तो फिल्टर आउट द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, जो कि FeCO3 का बनेगा। अच्छा, filter out the precipitate that is formed, और उसको फिल्टर आउट करने के लिए और फिर एंड में ना वॉश द प्रेसिपिटेट विद डिस्टिल्ड वाटर। विद डिस्टिल्ड वाटर एंड ड्राई इन सनलाइट। ठीक है, क्लियर है? रिमेंबर, इनसॉल्युबल सॉल्ट हमेशा इसी तरीके से प्रोड्यूस होगी। टेक द इनसॉल्युबल सॉल्ट, कोई भी दो रैंडम रिएक्टेंट सोचो, चाहे वो आपस में रिएक्ट करें या ना करें, एक से Fe आना चाहिए, दूसरे से कार्बोनेट आना चाहिए, जो भी आपकी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, शर्त है कि वो सॉल्युबल होना चाहिए। क्लियर है ये सारा? सर पीपीडी का क्या मतलब है? प्रेसिपिटेट, वो जो सॉलिड बना है ना नीचे बॉटम पे, अच्छा अच्छा, ठीक है। असल में वो सॉलिड नीचे तो बाद में आएगा, वो पहले सस्पेंडेड होगा, मतलब बड़े बड़े पीसेस बन रहे होंगे जहाँ पे भी वो Fe और CO3, तो वो सस्पेंडेड, जैसा वो चौक नहीं होता पानी के अंदर सस्पेंड हो जाता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वजन से ना वो बैठता रहेगा नीचे। ओके सर। चलो ठीक है, ये क्लियर है? जिनिया, इज दिस क्लियर? मुर्तजा? जी सर, इट इज। अच्छा, अब दी अदर थिंग इज कि उस पे आ जाते हैं, तीसरी जो सॉल्ट प्रिपेयर करनी थी, दैट वाज K2SO4। अब K ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की जो चीजें होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, सारी सॉल्युबल होती हैं। तो आई वांट टू प्रिपेयर K2SO4, उसके क्रिस्टल्स प्रिपेयर करने हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि जी ये तो आयनिक प्रेसिपिटेशन नहीं होगी क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है। तो रिएक्शन सोचो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, कि पोटेशियम मेटल उठाओ और एसिड कौन सा यूज करना है? H2SO4। अच्छा, ये रिएक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 1 की चीजें तो रिएक्ट ही नहीं करनी क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो नहीं करना। दूसरा कोई सोच लो कि K2SO4 और एरो और हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी KOH प्लस H2SO4।
और प्लस क्या बनेगा, इट्स गोइंग टू बी H2O which is a liquid. ये और सारे सॉलेबल हैं, ठीक है। के ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 के सारे कंपाउंड सॉलेबल हैं, या फिर ये K2CO3 भी हो सकता था, कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता था। तो मुझे बताओ कि अगर सारे सॉलेबल हो तो कौन सा मेथड होगा इफ ऑल ऑफ देम आर सॉलेबल? टाइट्रेशन। ठीक है, तो सारे सॉलेबल होंगे तो दिस गोइंग टू बी टाइट्रेशन। इसमें है कि जब आप KOH और H2SO4 रिएक्ट करोगे ना, तो कोई भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए, कुछ इन दोनों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही होगी दैट वुड गेट कंटामिनेटेड बाय द लेफ्ट ओवर H2SO4 और द लेफ्ट ओवर KOH। कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू यूज टाइट्रेशन, व्हिच इज के ऊपर से बीकर रखा, नीचे फ्लास्क पड़ा होगा, फ्लास्क के अंदर एक रिएक्टेंट डाल दो, जो कि मैं डाल देता हूँ H2SO4, और ऊपर से हम KOH डालते हैं। अब जैसे ही टैप ऑन होगा तो क्या होगा, मतलब ड्रॉप डलेगा KOH का अंदर H2SO4 के, और वो H2SO4 जो है ना, दैट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। और करते करते ड्रॉप वाइज आप टैप ऑन करोगे, KOH अंदर डलता रहेगा, एक पॉइंट आएगा कि, और वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम से नहीं पता लगता आप कितना KOH डाल रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था कि वॉल्यूम हो सकता है KOH के पार्टिकल्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब आप एक ग्लास पानी देख के आप नहीं पता लगा सकते बाय जस्ट लुकिंग एट इट कि उसके अंदर 1 चम्मच चीनी है या 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी है, ठीक है, यू कांट रियली टेल। तो सिर्फ देख के मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप KOH डालोगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और एक पॉइंट आएगा जब H2SO4 खत्म हो जाएगा, तो उसका मतलब है अगर आप तब भी टैप ऑन रखोगे तो एक्सेस KOH अंदर चला जाएगा, बस जरूरत से भी ज्यादा रिक्वायर्ड KOH फ्लास्क के अंदर चला जाएगा। यू डोंट वांट दैट टू हैपन, यू वांट टू स्टॉप एट दिस पॉइंट, यू वांट टू स्टॉप एट द पॉइंट के जहां पे H2SO4 सारा का सारा, आई मीन दिस रिएक्टेंट हैज गॉटन यूज्ड अप, और KOH भी आपने एक्स्ट्रा नहीं डाला। तो उसके लिए आप क्या यूज करते थे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते थे, जैसा मिथाइल ऑरेंज है, तो दे वुड गिव यू अ रेड कलर इन एसिडिक and they would give you an orange yellow color in basic conditions. तो ये पूरा आपने ना एक्सप्लेन करना है वर्ड टू वर्ड कि आप किस तरीके से सॉल्ट प्रिपेयर करोगे, और बेसिकली आपने रुकना है यहाँ पे, ना इससे पहले रुकना है ना इसके बाद रुकना है, क्योंकि इसके बाद KOH टैब जो है ना ऊपर से KOH बहुत ज्यादा डल जाएगा, यू डोंट वांट दैट टू हैपन, बट यू आल्सो वांट ऑल द H2SO4 इन द फ्लास्क टू रिएक्ट। तो KOH ऊपर से कम भी नहीं डलना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट डलनी चाहिए। ये क्लियर है सारों को? फराज क्लियर है? सर एक क्वेश्चन, हाँ, लेकिन सब मेटल वाले एक से कि जो आपने बताया था ना कि मैजिड हम यूज करते हैं, तो मतलब हम वो क्यों यूज करते हैं मैजिड वाले? नहीं उसमें मेटल, बाकी की वो मैंने उसी टाइम एक्सप्लेन किया था कि मेटल्स जो होते हैं ग्रुप 1 के बहुत रिएक्टिव होते हैं ना, तो जैसे जैसे ये वाला है ना ग्रुप 1, पोटेशियम यूज कर लो, मसला कोई नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि एक्सप्लोजन होगी, तो सेफ नहीं है। ठीक। फिर वो था कुछ मेटल्स होते हैं बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, जैसा गोल्ड है, गोल्ड को 1000 साल लग जाएंगे सॉल्ट प्रोड्यूस करने में, तो अब कौन 1000 साल वेट करे? तो द पॉइंट इज सम मेटल्स आर वेरी reactive, very explosively reactive, whereas there are other metals which are not very reactive. अच्छा, इसकी अब पूरी डिस्क्रिप्शन लिख लो कि जी KOH डालो, remember it's always the same description, तो fill burette with KOH, अच्छा once you've done that, pipette 25 cm cube फ्लास्क में डाल दो, वो दूसरा H2SO4 pipette 25 cm cube H2SO4 in flask, conical flask। अच्छा ये भी डल गया, उसके बाद क्या करना है, इंडिकेटर डालो, तो मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं, add few drops of
methyl orange indicator. अच्छा, add few drops of methyl orange indicator और वो करने के बाद start titration, add KOH drop by drop और stop करना है जब कलर चेंज हो. Start titration, add अच्छा add KOH drop by drop and stop when color changes. Stop when color changes from red to yellow. Orange yellow कर लेते हैं. हाँ सर. हाँ, सर ऑरेंज येलो पे एक्सेस नहीं होगा, हमने तो न्यूट्रल पे ही रोकना. हमने रोकना इधर है ना. हमने करना है कि एक भी छोटा सा ड्रॉप KOH का अगर हल्का सा भी ज्यादा हुआ ना तो एकदम से कलर चेंज होगा ना. तो हमने कोशिश अच्छा ठीक. मैंने एक तो वो है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में चला जाए. तो हमने वो नहीं करना. एक आध छोटा सा मतलब 100% तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि कलर चेंज होगा तभी हम रुकेंगे ना. तो मसला ये होगा कि थोड़ा सा KOH तो एक्स्ट्रा डलेगा ही डलेगा. ठीक है. और टाइट्रेशन का ब्यूरेट का फायदा ये होता है कि वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डालता है. तो अगर आपका टैप थोड़ा सा ज्यादा ऑन भी हो गया तो इतना ज्यादा KOH अंदर नहीं डलेगा. अच्छा, व्हेन कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज येलो, फिर क्या था? रिपीट टाइट्रेशन, नोट डाउन वॉल्यूम्स, एक दफा आपको पता लग गया कि इतने 25 cm³ के साथ 13 cm³ रिएक्ट करता है तो अगली दफा आपको टाइट्रेशन की जरूरत नहीं है. आप सिंपली 25 cm³ H2SO4 मेजर करो और 13 cm³ KOH उसके अंदर उल्टा दो. तो रिपीट टाइट्रेशन, नोट डाउन वॉल्यूम्स यूज्ड. ये रिपीट टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर होना चाहिए था. So you note the volumes used. Repeat titration without indicator, ये लिखना था. So repeat titration without indicator. Note down volumes used. और फिर last step crystallization के. तो you evaporate the solution to saturation point. And then you cool gradually to obtain crystals. ये खैर हर दफा कहानी वैसी. अच्छा, cool करने के बाद cool gradually to obtain crystals and then you have filter out crystals. Dry in sunlight. बस ये सारा ना उसका मेथड है. तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ. नंबर 1, Na3PO4 बनाना है. नंबर 2, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है. और नंबर 3 जो है दैट्स नंबर 3 क्या रखें? नंबर 3 बनाना है बैरियम नाइट्रेट कर लेते हैं. ये बनाना है. जो सारे ना ये अगर फ्री हो तो भी कर लेना, वरना लेकिन ये होमवर्क है, कल तक कंप्लीट करना है. ठीक है, ये 3. सर हाँ जी.
सर एक क्वेश्चन है कि मतलब व्हाई विल वी रिपीट टाइट्रेशन? नहीं वही ना, वो टाइट्रेशन को कंटामिनेट क्या चीज कर रही है? इंडिकेटर कंटामिनेट कर रही है ना। आपका जो सॉल्ट और वाटर बना है ना, उसके अंदर इंडिकेटर कंटामिनेट कर रहा है उसे। समझ आई बात? जी सर। तो इंडिकेटर से जान छुड़ानी है। जब एक दफा तुम्हें पता लग गया कि H2SO4 में ऊपर से कितना KOH डालना है, ठीक है, अच्छा, ओके। तो अगली दफा तुम्हें फिर वो दोबारा इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मतलब अब तो पता होगा ना सबको। फॉर एग्जांपल हमें फिर से गिरने की जरूरत तो नहीं है ना? क्या करने की जरूरत है? लाइक लाइक सर, मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ गूगल पे होगा ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितनी चाहिए हमें H2SO4 करने के लिए, या हमें खुद करना पड़ता है? वो खुद करना पड़ता है क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज हो सकती है ना। ठीक है कि सर। कि मतलब वो जो मैं वही कह रहा हूँ ना, एक ग्लास है उसके अंदर पानी है या वो मतलब एक ग्लास H2SO4 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता कि उसके अंदर H2SO4 के पार्टिकल्स कितने डले हुए हैं? मतलब पानी तो है उसके अंदर, ये एक ग्लास है, उसके अंदर कितनी चीनी डली हुई है या कितना उसमें नमक डला हुआ है, ठीक है, यू डोंट नो। तो हम्म वो तो हर किसी का वेरी करेगा, गूगल ये आंसर नहीं आपको देगा, ठीक है सर। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ वहाँ पे। ये कल तक ये तीनों का ना इसी तरह मेथड ऑफ प्रिपरेशन मुझे बता देना और ये रिवाइज कर लेना। ओके। चले, ओके, टेक केयर, ओके ओके सर, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।